So here today we move ahead with the terms like jet stream and related to which a video will be shown to you. And then there is western disturbances, मतलब कि जो the wind that blows over from the west, how it creates the dust storms and what impact it leaves behind on those states or countries or regions over which it blows. So there are many such terms, as I told you in the previous lecture also, that you need to ask your teachers, because in many of the school, this part is just for the knowledge it is provided, but otherwise कहीं पे 1 मार्कर पूछे जाते हैं. Yes, of course, that is compulsion. So at least चलो पूछे या ना पूछे तुम्हारे स्कूल में, I would say understand it very perfectly for your extra knowledge. And for 1 mark, of course, to score your 1 mark MCQ, fill up, all this thing could be asked from the small terms over here. So let's see. Let us know certain weather terms appearing frequently. Frequently मतलब on and off. Newspaper में आते ही रहते हैं ये. In the Indian newspaper, that is. We are not talking about any other country over here. And you would see that how the jet stream, what is it? How does it create the impact, or what impact it has on the life of the people, or what is exactly jet stream? Let's see. In both hemispheres, around 30-degree latitude, both the hemisphere, that is northern, southern, right? Very powerful wind in a pipe-shaped belt. मतलब दिख रहा है ऐसे, that is like a pipe, right? Belt form. It blows with high speed in the atmosphere at the height, that is altitude, of 8 to 15 kilometer. These winds are known as jet stream. Their average velocity, that is speed, is about 150 kilometer per hour. And in the central part of this wind belt, their velocity is about 400 kilometer. When this wind starts blowing, first of all, it blows at a very great speed at the height of 8 to 15 kilometer, और उसकी स्पीड रहती है 150 किलोमीटर पर आवर. लेकिन कहीं पे उसकी velocity in the central part of this wind belt, it increases. There's 400 kilometer per hour. During winter, these winds blow over the southern slope of Himalayas. विंटर में ये विंड कहाँ पे ब्लो होगी? सर्दर्न स्लोप ऑफ हिमालयस. इन समर वो स्टैटिक हो जाती है ओवर सर्दर्न इंडिया. तो एक पर्टिकुलर पार्ट में ऑफ द ईयर इट ब्लोज इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयस, and in summer you can experience it in the southern part of India. So one time North India, one time South India. South India, that is Peninsular India. High altitude winds help to bring rain. यही हवा हायर एल्टीट्यूड पे जब बहती है, जब वो ब्लो हो रही है, तो इट कॉजेस टू ब्रिंग रेन. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. जेट स्ट्रीम फॉर्म्ड ओवर वेस्ट एशिया ब्लोज टुवर्ड्स ईस्ट. अब ये वेस्ट एशिया से आने वाली विंड है. इट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट, affects the West Asian countries, Northeast India, Pakistan, Afghanistan. The dust storms that it brings along with it. So the dust storms accompanying these disturbances leave their impact or effect on till Bangladesh. मतलब बांग्लादेश तक इसकी इफेक्ट दिखाई दे रही है. This often creates disturbances in the pleasant weather. अब weather winter में एकदम pleasant है. Like today itself you could see that कल बारिश हुई थी early morning, then it was cold, very chill throughout the day, and very pleasant it was, like hill station atmosphere हो चुका था. Weather, this is what I want to explain over here. जो हमने कल एक्सपीरियंस किया कि बारिश की सीजन नहीं है, सीजन नहीं है बारिश की, लेकिन सुबह बारिश हुई, फिर later on throughout the day it was till, I would say, a bit of till evening it was cold enough. फिर थोड़ी बहुत गर्मी स्टार्ट हुई. I won't say it was hot, but slight warmness start हो चुकी थी. Again, like late night after 11:30 it was cold. सुबह उठते ही वापस आज सुबह 6 बजे 5 बजे it was cold, but not like yesterday. Right? So this is what the difference that I have experienced. We all have experienced, I would say. तो इसे हम कहेंगे वेदर में बदलाव. ये सीजन नहीं बदली. तुम कल सुबह तुम लोगों ने yesterday, that is,
you'd not have told your mother, oh, बारिश हो रही है, चलो rainy season आ गई मम्मा या पापा या whoever in the house. No, it's not that. एक घंटे की या 2 घंटे की या आसपास, अहमदाबाद के आसपास या गुजरात के कई ऐसे रीजन्स है जहाँ पे काफी बारिश हुई थी 2-3 घंटे तक, तो नोबडी वुड से कि हो गुजरात में तो भाई बारिश के मौसम आ गई. नो, इट्स नॉट सीजन, इट्स वेदर चेंज. इसे हम कहेंगे वेदर. सुबह कुछ अलग, शाम को अलग, कल कुछ और, आज कुछ और, टुमारो इट वुड बी अ बिट डिफरेंट. शायद 2 दिन के बाद एकदम से गर्मी आ जाए वापस. सो दिस इज कॉल्ड वेदर चेंज. बस सीजन कौन सी चल रही है अभी? सेम, 3 months विंटर. तो बांग्लादेश तक ये वेदर का इम्पैक्ट रहता है, ये तेज हवा का असर दिखता है. एंड दिस ऑफन क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन द प्लेजेंट विंटर वेदर ऑफ नॉर्थ इंडिया. और नॉर्थ इंडिया में तो प्लेजेंट विंटर वेदर चल रहा है, उसमें फर्क आ जाएगा. Very high mountain receives snowfall and a plain region, that is flat region, receives some rain which is useful for rabi crop. This may cause unseasonal rain, जैसा अभी हुआ था, जिसे हम क्या कहेंगे locally माउथ्रू in Gujarat, which may damage the crops, right? जैसे ज्यादातर माउथ्रू से अगर और थोड़ा लेट होता तो शायद मैंगो के ग्रोथ पर असर होती. कई लोगों ने अपना हार्वेस्टिंग करके जैसे ओपन फील्ड में डाल दिया हो, अचानक से बारिश, तो ये सारी चीजें कॉटन को खराब करती है, वीट खराब हो जाते हैं. सो माउथ्रू ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन ऑल्सो, राइट? लेट्स मूव अहेड. Conditions in South India during winter are different from those in North India. अब साउथ इंडिया की कंडीशन विंटर में अलग है. जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में किया था, फर्स्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा समझाया था कि जो सी कोस्ट के नजदीक हैं उनके यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग होगा. सीजन वही है, साउथ में भी विंटर, नॉर्थ में भी विंटर, लेकिन साउथ में स्नोफॉल नहीं होता, नॉर्थ में हो रहा है. साउथ इज नियर द सी कोस्ट, नॉर्थ इज अवे फ्रॉम सी कोस्ट. तो यहाँ पे फर्क आ रहा है. विंटर्स आर डिफरेंट फॉर साउथ एंड नॉर्थ इंडिया. साउथ इंडिया इज लोकेटेड इन टॉरिड जोन. अब तो ये तुम्हें बाहर हो गया होगा. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे टॉरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अबाउ टेम्परेट जोन, नियर द इक्वेटर and has a peninsular shape. So South India is located in torrid zone. It's a bit below the equator. फिर पूरा पार्ट टॉरिड, इक्वेटर के थोड़ा नजदीक भी होगा, लेकिन it will not be too hot, but and it has a V shape. Its inner area is not very far from sea coast. So this area does not feel severe cold as northern India during winter. There is no snowfall. Temperature also does not go down very low. Temperature at Kochi during Jan is 26, Madurai is 25, Chennai is 24. But mountainous area in South India feels low temperature. लेकिन वही अगर ठेकड़ी मुन्नार चले जाओ विंटर में, और ऊटी कोडाईकनाल चले जाओ, yes, it's too cold plus rainfall. क्योंकि तमिलनाडु इज अ प्लेस यहाँ पे 2 बार बारिश होती है, राइट? एक बार जो साउथ वेस्ट मानसून विंड से जो इंडियन ओशन से ब्लो होकर जो विंड बहती है आगे, दैट ब्रिंग्स रेन टू साउथ ऑफ इंडिया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. फिर आगे लेफ्ट में, दैट इज वेस्ट में देखो तो गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ तक ज्यादा बारिश. वो ही विंड आगे बढ़ के, लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर योर. Now, North India, South India, this is Indian Ocean नीचे, right? Now, the wind that blows, this is ocean, right? This is full ocean. अब यहां से जो विंड ब्लो होके नॉर्थ साउथ इंडिया की तरफ आएगी, दिस पेनिनसुला, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे यू विल सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आगे आगे आगे, देन अवे फ्रॉम सी कोस्ट. तो ये जो पेनिनसुला प्लेटो है साउथ इंडिया, तो ओशन से जो हवा बह के आगे आएगी, दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून विंड, राइट? और ये
हवा आगे बहते बहते बहते, यू विल सी, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू अगेन. Now your north of India, south of India, Indian Ocean, the three side South India is covered with water. अब इंडियन ओशन से जो हवा बह के आगे बढ़ेगी, these are all we have done earlier also. These are all termed as साउथ वेस्ट मानसून विंड. अब ये बारिश लेके आएगी क्योंकि पानी के ऊपर से बह के आ रही है. तो टिल महाराष्ट्र, बॉम्बे तक, और ये सी कोस्ट एरिया भी है पूरा अटैच, तो यहाँ तक ज्यादा बारिश होगी. गुजरात में आते आते कम हो जाएगी. अब गुजरात में भी जो सी कोस्ट के नजदीक है वहां पे ज्यादा बारिश होगी, बाकी कम. लेकिन यही विंड आगे जाके थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब ज्यादातर जाएगी साउथ वेस्ट में, थोड़ी बहुत साउथ ईस्ट में भी जा रही है. अब साउथ ईस्ट में जो जाएगी वो सबसे पहले बारिश देगी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा, राइट. फिर कम हो जाएगी. तो ज्यादातर बारिश लेफ्ट में, साउथ वेस्ट मानसून विंड. लेकिन वो ही बारिश लाने वाली साउथ वेस्ट मानसून विंड थोड़ी बहुत साउथ ईस्ट में भी चली जाएगी. दो हिस्से बन जाते हैं उसके, राइट. तो एक विंड के दो पार्ट, ज्यादा वेस्ट में और एक थोड़ा सा ईस्ट में. तो जो ईस्ट में गया वो तमिलनाडु को ज्यादा बारिश देगा. अब यही सारे विंड गोल घूम के, इट टेक्स अ टर्न, यू टर्न यू टर्न यू टर्न, मतलब कि यहां से यू टर्न लेके पूरा वापस विंड, मतलब यही साउथ ईस्ट मानसून विंड आगे जाके डिफ्लेक्ट होके टर्न हो जाएगा. Then it takes a turn, goes up, 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 takes a U-turn, comes back. अब यहाँ पे क्या आ गया? Here you will see ocean again. अब फिर से वो ओशन से मॉइस्चर कलेक्ट करके आ गया आफ्टर 6 months over here. तब तक आ गया विंटर में तमिलनाडु, राइट. तो तमिलनाडु रिसीव्स ट्वाइस रेनफॉल, राइट. Those who are not clear may tell me, I would say in the next lecture, so I can once again repeat and show to you this, like just for example, very much in short, कि साउथ वेस्ट मानसून विंड इंडियन ओशन से पानी लेके चली गई, फिर वहां पे थोड़ा सा यही विंड ने एक और पार्ट बना लिया, तो राइट हैंड साइड ईस्ट की तरफ जहाँ पे तमिलनाडु को बारिश दे रहा है, यहाँ पे केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र को बारिश मिल रही है. गुजरात तक आते आते पानी या बारिश कम हो जाएगी. जो सी कोस्ट के नजदीक रीजन्स है गुजरात के, उनको मिल जाएगी ज्यादा बारिश. फिर यही साउथ ईस्ट वाली विंड तमिलनाडु को बारिश देके देन इट गोज अहेड एंड टेक्स अ टर्न. ये भी आगे बढ़ते 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 सूखी हवा बन जाएगी, क्योंकि नाउ इट हैज गिवन ऑल इट्स मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेन टू ऑल द रीजन्स. अब ये दोनों मिलके टच होके अब ये आगे ऊपर जाएगी. अब हल्की फुल्की हवा बन चुकी है विदाउट मॉइस्चर. इट विल टेक अ यू टर्न एंड कम बैक. फिर से ओशन आ गए, राइट. अब ये बन गए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो हमने किए थे, राइट, प्रीवियस लेक्चर में. अब यही नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड फिर से ओशन के ऊपर से बह के मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे. आगे बढ़ते 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 आ गया विंटर, दैट इज विंटर सीजन. तमिलनाडु तक ये पहुंच गए एंड नाउ इट हैज लॉस ऑफ मॉइस्चर, विल गिव रेनफॉल टू तमिलनाडु. तो तमिलनाडु को एक बार साउथ ईस्ट मानसून विंड से बारिश मिल रही है, एक बार नॉर्थ ईस्ट विंड जो ट्रेड विंड है, सूखी हवा है, लेकिन बाद में वो ही बन जाएगी, यू विल सी, full of moisture because it moves from over the Bay of Bengal, right? तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, हर एक जगह पे विंटर अलग है. कहीं पे 26-25 डिग्री जो सी कोस्ट के नजदीक जगह है, जो सी कोस्ट से दूर है, लाइक नॉर्थ इंडिया, इफ यू गो टू कुल्लू मनाली, यू गो टू कश्मीर. साउथ में ही अगर हिली रीजन में जाओ, जैसे मैंने कहा ठेकड़ी, मुन्नार, ऊटी, कोडाईकनाल, ये सारी जगह पे तुम देखोगे तो साउथ इंडिया के लेकिन हिल स्टेशन है ये,
राइट? तो नॉट माउंटेन, आई एम सेइंग हिल स्टेशन, ऊंचाई पे है थोड़ा, तो वहां पे भी बहुत ठंड होगी, दो इट इज साउथ इंडिया। लेकिन बाकी की जगह साउथ इंडिया में जो फ्लैट रीजन है, जो हिली नहीं है, लाइक चेन्नई एंड ऑल, तो वहां पे होगा 24-25, दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ठंड बढ़ेगी। अब तुम नॉर्थ की तरफ जाओ तो यहाँ पे, राइट? इन इंडिया विंटर इज सेट टू बी वेरी प्लेजेंट एंड हेल्दी सीजन। हमारे लिए इंडिया में तो विंटर एकदम प्लेजेंट माना जाता है, हेल्दी सीजन है। एंड ड्यू टू लॉन्गर एंड कूलर नाइट्स, ड्यू एंड फॉग आर कॉमन इन अर्ली मॉर्निंग। जैसे आज सुबह ही वॉक पे जब जाके, व्हेन आई वेंट ऑन अ वॉक एंड आई वाज कमिंग बैक, लाइक इट वाज अबाउट 7 o'clock और समथिंग, एंड व्हाट आई सॉ वाज कि हर एक जो रोड के दोनों ओर जो बहुत सारे कार पार्क हुए थे, तो ऑल दिस व्हीकल्स, उनके कांच पे, उनके विंडोज पे, दैट इज ग्लासेस पे, वी कुड इजीली सी द फॉग, वी कुड सी द नॉट ड्यू ड्रॉप्स एक्चुअली, लेकिन एक गीलापन दिखाई दे रहा था। एंड इफ यू पीप इनसाइड यू कुडंट सी, you have to move your finger on it, you have to wipe it out, then only the glass becomes clear. So that is early morning, yeah, late night, we could see this dewdrops and fog, which is very common. And days are shorter, nights are longer and cooler in India in winter. Day is shorter, night is longer, as I told you. In winter, dry winds coming from over land area, that is from north, generally they do not bring rain. But northeast wind coming over from Bay of Bengal, just now I told you, यही जो नॉर्थ की हवा है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, वो सूखी जगह से, ड्राई एरिया से ब्लो के आ रही है, तो बारिश नहीं लेके आएगी। लेकिन यही नॉर्थ ईस्ट विंड जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से बह के आगे बढ़ेगी, तो इट विल ब्रिंग रेन with a bit of disturbance, and it collects humidity from Bay of Bengal. This wind gives rainfall to the Coromandel coast. Northeast gets some rainfall due to western disturbance and thunderstorm. कई बार कई जगह को नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे सेवन सिस्टर्स, दे गेट रेनफॉल, बट दैट इज ड्यू टू देयर, कई बार बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मतलब ऐसी हवा चलती है जो जैसे कल जो हुआ था बिन मौसम बारिश, वैसे उनके यहाँ भी कभी हो जाता है, थंडरस्टॉर्म आ जाते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स रेन. सो इट इज नॉट सीजनल रेन. दिस रेन इज यूजफुल एक्चुअली फॉर रवि क्रॉप. पंजाब हरियाणा में अगर ऐसी कभी बारिश हो गई बीच में एक आध दिन की, तो वो अच्छा है उनके रवि क्रॉप के लिए. दिस विंड्स गिव रेन इन गुजरात ओकेजनली. गुजरात में कई बार होता है ये. एंड दिस बिन मौसम की बारिश, अनसीजनल रेन इन गुजरात इज लोकली कॉल्ड Mauthu. So let's see in short. Condition of South India different from North India. South India is close to sea coast. It is V-shaped, located in torrid zone, not very cold. Temperature in Jan is highest about 26-20, not highest I would say, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ठंड, मतलब लोवेस्ट में लोवेस्ट टेम्परेचर अगर जैन में या फरवरी में अगर साउथ इंडिया में देखो तो इट इज अबाउट 26-24. बहुत बहुत तो वहां के हिल स्टेशन पे हो जाएगा 18-17 एंड ऑल. बट अदरवाइज साउथ इंडिया प्लेन रीजन विच इज नॉट एट अ ग्रेट हाइट इन साउथ इंडिया, ऐसी जगह पे 26-25. टेम्परेचर डिक्रीजेज एज यू गो टूवर्ड्स नॉर्थ इंडिया. इज प्लेजेंट हेल्दी सीजन फॉर इंडियन पीपल. Longer nights, cooler nights, dew and fog common early morning. Days are shorter. Dry winds coming from north doesn't bring rain. But northeast wind passes over Bay of Bengal and it brings rain, as I told you in Tamil Nadu. It brings more rain to Coromandel coast. This winds bring rain in Gujarat is called Mauthu. In Punjab, Haryana, it is very good for Rabi crops. Now El Nino. ये इंटरेस्टिंग है और इसमें तुम्हें लर्न करने, जैसे मैंने कहा पहले भी ऐसे दो टर्म्स आए थे. फॉर योर ऑब्जेक्टिव लर्न इट वेरी परफेक्टली. And here also you will learn for your objective very perfectly. So let's know some frequently used words in the newspaper about Indian weather. El Nino. This is a Spanish word. One marker. Learn it. So El Nino is a Spanish word, which actually means, literally it means, their dictionary form, uska meaning hai small child. The name was given by Peruvian fishermen after the child Jesus, बिकॉज इस इफेक्ट इज जनरली फेल्ट अराउंड क्रिसमस. अब क्रिसमस नजदीकी है
today is 12th, right? Yes, today is 12th, Saturday. यहाँ पे तुम देखोगे कि अब क्रिसमस 12-13 दिन के बाद क्रिसमस स्टार्ट हो जाएगा एंड all will be very eager to enjoy those Christmassy days and lights, cakes and days full of light and enjoyment and all. Naturally, हम तो हर एक season enjoy करते हैं, though we are Christians or though we are not Christians, but we enjoy Diwali, Christmas equally. तो बहुत एक eagerness होती है, excitement होती है, and you will see that यहाँ पे ये जो हवा जो चलती है वो यूजुअली क्रिसमस में उसकी इम्पैक्ट ज्यादा फील होती है और द नेम वाज गिवन बाय पेरुवियन फिशरमैन आफ्टर चाइल्ड जीसस बिकॉज दिस इफेक्ट दैट इज इम्पैक्ट असर is generally felt around Christmas. This warm current starts to the west or originates to the west of Peru. Peruvian matlab from Peru. Find out where is Peru located on the world map, right? You'll have to find out. Tell me in the next lecture. So this warm current originates to the west of Peru. That is west, matlab when you see in front of you the map, it is left. Along the Pacific coast in South America, due to atmospheric and oceanic condition, a Pacific coast in South America, वहां से काफी नजदीक ये warm current originate होगा. This current flows westward. Its effect is felt up till India. El Nino feature या phenomena takes place occasionally. Whenever it takes place, changes occur in the duration of monsoon and amount of rainfall in India. जब भी देखो एल नीनो की इफेक्ट कई बार दिखाई देती है इंडिया में और एल नीनो की वजह से होता क्या है कि हमारे इंडिया में मानसून का जो टाइम पीरियड है बारिश का आना कितनी बारिश होगी अमाउंट ऑफ रेनफॉल एवरीथिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो. Now ITCs, learn the full form 1 marker. फिर ये डिग्रीज लर्न कर लेना. A large low pressure area develops over the equator. Where the trade winds converge means parts away. And a large low pressure area develops. Low pressure मतलब हमने पहले भी किया था. High temperature मतलब गर्मी. It develops over the equator where the trade winds converge. Is called intertropical convergence zone. ITCZ. यहाँ पे trade winds दिखेंगे हमें. Now the trade winds move upward in the form of air current. In July, this convergence zone is located or stationed. It becomes static, sthir, over 20 to 25 degree north latitude. In India, it is stable over Ganga plain. Due to low pressure developed over this region, winds generated over the ocean in south hemisphere blows towards this area. अब इंडिया में ज्यादातर कहाँ पे हवा बहेगी और फिर वहां पे स्टैटिक हो जाएगी गंगा प्लेन. दैट इज यू विल सी यूपी, बिहार, दिल्ली एटसेट्रा. ड्यू टू लो प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर डेवलप्ड इन दिस रीजन, winds generated over the ocean in southern hemisphere blows towards this area, causing rain in some parts of North India. During colder season, convergence zone shifts further south, so the wind change the direction to northeast. तो ये convergence zone it keeps on shifting और साउथ में असर दिखाई देगी, कई बार उसके नॉर्थ में असर दिखाई दे रही है. So it keeps on changing its position. Now comes warm weather. That is summer, Grishma season. In India, the warm and dry season, learn it, all your objectives, plus 2 marker, 3 marker. तो ये ज्यादातर हम देखते हैं between March to May is called summer. During this period, sun rays fall now vertically from south to north gradually. And landmass becomes warmer. अब हमारे यहाँ vertical sun rays जो स्लांट थे धीरे एकदम से कल विंटर खत्म हुई, ठंड खत्म हो गई, आज एकदम पसीने पसीने गर्मी स्टार्ट हो गई. No, it's not that. It is slowly, gradually, step by step winter खत्म होता जाएगा, समर की एंट्री होगी, बट एकदम से ठंड गायब और गर्मी ने एंट्री ले ली. कल 14 डिग्री थी, आज एकदम से समर स्टार्ट हो गया March 1st March and it is directly 40 डिग्री. No,
धीरे धीरे धीरे, मतलब कि जो टेम्परेचर एकदम लो हो चुका था हमारे यहाँ, जैसे 10, 11, 12, वो धीरे 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 बढ़ेगा, 15 होगा, 16, 18, 20, 25, फिर हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगेगी। तब वो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, जो अभी प्लेजेंट है, गर्मी नहीं, प्लेजेंट है, ठंड भी नहीं है। जो 10, 14 डिग्री हो चुका था उसकी जगह पे अब आ गया है 20, 22, 23, फिर मार्च के मिड तक हो जाएगा 25, 26, अभी भी प्लेजेंट है। मार्च एंड तक ये रहेगा। अब अप्रैल फर्स्ट वीक में आ गई गर्मी, राइट? इट कम्स टू 30, 35, 36, एंड समवेयर इन मे मिड से जून तक इट रीचेज अबाउट 40 समटाइम। दिस इज कॉल्ड स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली चेंज दिखाई देता है, ग्रेजुअली, राइट? तो अब सनरेज का वर्टिकल, एकदम वर्टिकल नहीं होंगे, जो स्लैंट थे, विंटर था, वो धीरे 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 धीरे, मतलब लेट मी शो यू ओवर हियर, पहले एकदम स्लैंट थे, फिर यही थोड़े कम स्लैंट हुए सनरेज, फिर और स्लैंट, फिर थोड़े कम, कम, स्ट्रेट। अब ये आ गया समर, ये था विंटर, ये धीरे धीरे स्लैंट होना बंद हो गया, स्ट्रेट आ गए, वर्टिकल, राइट? अब आया समर, ठीक है? तब ऑस्ट्रेलिया में होगा स्लैंट, तो वहां पे विंटर, राइट? सो during this period sunrays fall vertically from south to north gradually, that is slowly, step by step, very gradually, and landmass becomes warmer. I didn't say hot, it becomes warmer. ये वाला सेक्शन धीरे 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 धीरे, ठंडी का कम होना, गर्मी के नजदीक जाना। टेम्परेचर इंक्रीजेस कंटिन्यूसली। मंथ ऑफ मार्च इज द हॉटेस्ट मंथ इन साउथ इंडिया। वो साउथ इंडिया में, वंस अगेन, वाई? इट इज नियर द सी कोस्ट, राइट? हम जो नॉर्थ की तरफ नजदीकी में थे, वहां से जो ठंड हवा बह के आती थी हमारी तरफ, तो हमें ठंडी ज्यादा महसूस होती थी, राइट? गर्मी कम। साउथ में गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी जल्दी हमसे, राइट? एंड यस, बट इतनी नहीं, लाइक जून, जुलाई, अप्रैल में आते आते वहां पे उनकी कंपैरिजन में बढ़ेगी और हमारी हमारी कंपैरिजन में काफी बढ़ जाएगी। वी आर नॉट कंपेयरिंग अहमदाबाद एंड चेन्नई एंड मुंबई एंड ऑल, बट हमारी खुद की कंपैरिजन में हमारे यहाँ थोड़ी गर्मी बढ़ेगी, वैसे उनके यहाँ भी बढ़ेगी। एंड मंथ ऑफ मार्च इज हॉटेस्ट हाउएवर फॉर साउथ इंडिया, बट आई वुड से ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में अगर जाओ कहीं पे, केरला एंड ऑल, तो मार्च इतनी इतनी हॉटेस्ट मंथ आई वुड नॉट कंसिडर। ऑफ कोर्स नाउ डेज आई हैड बीन 2 years बैक, तो यही नॉट मार्च में, बट आई हैड बीन इन अप्रैल एंड मई में, and what I had experienced was it was too hot, right? So in southern India, temperature exceeds 40 degrees at many places. Central and Northeast India experience maximum temperature during April में, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत गर्मी. At some places temperature reaches 45 to 50 degree. Thus entire country will experience high temperature during summer. Due to this height, that is altitude of South India and plateau, summer in South India is a bit little mild. अब साउथ इंडिया में जहां पे हिली रीजन्स हैं वहां पे प्लेजेंट होगा, वहां पे गर्मी कम होगी. कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लो, राइट? While the temperature in Delhi and Allahabad is 34, Madurai 30, Bangalore 27, the physical features and sea seems to have great effect on the temperature in South India. साउथ इंडिया में तो फ्लैट रीजन है, वहां पे गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन साउथ इंडिया में जो हिली रीजन है वहां पे गर्मी कम होगी. वैसे ही विंटर में जाओ, ये हमने समर की बात की कि गर्मी कहाँ ज्यादा होगी, फ्लैट रीजन में, हिली रीजन में कम, साउथ में. गर्मियों में, ठंड में, साउथ में हिली एरिया में ज्यादा ठंड होगी, सीकोस के नजदीक चले जाओ फ्लैट रीजन में साउथ इंडिया में, तो ठंडी थोड़ी कम होगी. सो हर बार साउथ इंडिया में जाओ तो हिली रीजन जो है, लाइक ठेकड़ी मुन्नार, आई टोल्ड यू, इट्स वेरी प्लेजेंट, ओवर प्लेजेंट इट इज. तो इन इंडिया मार्च में वार्म एंड ड्राई सीजन, सनराइज फॉल वर्टिकली, द लैंड मास इज वार्म और वार्म.
Temperature increases. March hottest month. Temperature more than 40 degrees. Central and Northeast India maximum temperature. Due to the height of southern India and plateau, mild summer could be experienced in south. Delhi 34, Madurai 30, etc. Now northwestern लू, ये भी तुम्हें काल बैसाखी हमने ऑलरेडी कर लिया था. लू तो बहुत सुना है हमने गुजरात में. अब चलो देखते हैं. द लो प्रेशर पॉकेट मतलब हाई टेम्परेचर, जब बहुत गर्मी बढ़ जाएगी ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्प्रेड्स अप टिल बिहार, ड्यू टू विच सम पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड झारखंड बिकम्स मोर हॉट ओकेजनली, इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्टर. और यही ओवर हीट की वजह से हवा गर्म हो जाती है एंड इट ब्रिंग्स स्टॉर्म. These winds are known as Kal Baisakhi locally and cause mud damage to East India like Odisha, West Bengal. In the dry region of West and Northwest India, storms or thunderstorms are common. In summer, especially in May, hot winds blow over North India, which are called as Loo. Due to the excessive heat, many people and animals die. अब ये ज्यादातर हम वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे गुजरात एटसेट्रा जगह पे देखते हैं कि सैंड स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म होते हैं, कॉमन है ये. और मई में स्पेशली बहुत गर्म हवा चलती है एंड इज कॉल्ड एज लू, जिसकी वजह से कई बार लोग भी मर जाते हैं, एनिमल्स मरते हैं, राइट. सो ड्यूरिंग दिस सीजन ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप ओवर बे ऑफ बंगाल एंड ओवर अरेबियन सी एंड एडवांस टुवर्ड्स कोस्टल एरिया, cause of devastating effects over coastal region. Most of the country experiences hot and dry weather during summer. तो काफी पार्ट हमारे कंट्री के ऐसे हैं जहाँ पे hot and dry weather होते हैं समर में. Most of the places do not receive any rainfall in this season, but some Malabar coast get some rain which helps the mango crop. अब बहुत सारी जगह पे उनको इस सीजन में बारिश नहीं मिलती, but sometime Malabar coast they do get rainfall, which is very important for mango crop. So it's called Amra Vrushti. Learn it. It's useful for the growth of mango and coffee. अब रेनी सीजन इंटरेस्टिंग. इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, तो हमारे जैसी कंट्री में बारिश के ऊपर ही हमारा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रहता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स एंड फॉर ऑल ऑफ अस. सो रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट सीजन फॉर आवर कंट्री इंडिया. About 80% of the rainfall that country is receiving, that is between June and September. Indian farmer is busy in farming from beginning of rainy season. Southwest monsoon wind, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, right? Just a minute. This I showed you. South of India, Peninsula Plateau, ocean. ओशन से जो हवा बह के आएगी उसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट. उसका खाली थोड़ा सा हिस्सा साउथ ईस्ट बन जाएगा. बारिश से तमिलनाडु को दे रही है यहाँ पे, बट ये पार्ट काफी जो है खूब सारा मॉइस्चर लेके आगे बढ़ रहा है. इट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून विंड, राइट. सो Indian farmer is busy farming from the beginning of rainy season. Southwest monsoon winds are responsible for rain bringing in this season. And the humid and cloudy weather के लिए भी कौन responsible है? Southwest monsoon wind. That is why it is called, also known as season of southwest monsoon wind. Learn it. Almost entire country, that is our India, gets rainfall due to this southwest monsoon wind. अगर southwest monsoon wind time पे नहीं आएंगे तो बारिश लेट हो जाएगी. By the end of May, low pressure, मतलब high temperature, develops. That is, low pressure किसकी वजह से आ रहा है अब end of May में? क्योंकि इंडिया और सेंट्रल एशिया पे गर्मी बढ़ने लगी due to high temperature over India and Central Asia. At this time, Indian Ocean in the south develops high pressure. अब इंडियन ओशन में तब प्रेशर हाई हो जाएगा. So wind blows towards northern low pressure pocket. Summer monsoon wind blow from ocean towards India. As these winds are full of moisture, they bring rain. So rainy season. India, agrarian country, rainy season, very important. 80% rainfall in between June to September. जितनी भी बारिश होती है उसका 80%. Right? Farmer are busy. Southwest monsoon wind brings rain. They are cloudy, humid weather. There's also known as southwest monsoon rain. Right? And entire India gets rain due to this southwest monsoon wind. That you can clearly see over here. That how this पूरा जो ocean part है, this is
southwest. This is our Indian Ocean. Indian Ocean, right? Now this Indian Ocean, यहाँ से जो हवा बह के आएगी, it collects moisture, moves up, और फिर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी हो जाता है, तो it gives rain to Kerala, तमिलनाडु, फिर आगे कर्नाटका एंड गोवा, जून तक मुंबई, फिर थोड़ी बहुत अहमदाबाद, समवेयर अहमदाबाद तो नहीं लेकिन जो सी कोस्ट वाले एरिया है गुजरात के, उनको बारिश मिल रही है। फिर यहाँ से तो मुंबई तक आते आते इट गेट्स डिफ्लेक्टेड, गोज टूवर्ड्स भुवनेश्वर, कैलकाटा, वही शिफ्ट हो जाते हैं वो लोग। यहाँ पे भी गुजरात से डिफ्लेक्ट होके वो पहुंच जाएंगे इलाहाबाद, तो यहाँ पे थोड़ी बारिश होगी, तब तक आ गया जून, और फिर तो बारिश कम कम कम, नो बारिश, कम 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 मतलब स्लो, लेस लेस लेस, फिर बारिश गायब। क्लियर? तो नॉर्थ में तो बारिश होगी नहीं। नाउ ड्यू टू द पेनिनसुलर शेप ऑफ साउथ इंडिया, southwest monsoon winds are divided into two parts, Arabian Sea current, Bay of Bengal current. तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज 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 रिवाइज, एंड नेक्स्ट वीक फ्राइडे मैं अनाउंस भी कर रही हूँ एट द सेम टाइम। टेस्ट जो मैं कहने जा रही हूँ, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे, दिस कमिंग फ्राइडे। तो लेक्चर के बाद एमसीक्यू की टेस्ट रखी जाएगी। तो पहले मैं लूंगी लेसन 17 एसएस, इट विल बी ऑनलाइन एंड इंस्टेंट रिजल्ट, लाइक इंस्टेंट योर हांडो, इंस्टेंट ढोकला, तो ये इंस्टेंट मार्क्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, नीड नॉट वरी। तो एवरी फ्राइडे अ बिट ऑफ टाइम लिमिट वाली एक डिटेल एमसीक्यू टेस्ट होगी तुम्हारी। तो वर्ड टू वर्ड टेक्सचुअल रीडिंग स्टार्ट कर दो। आई एम गिविंग यू 1 week टाइम फॉर लेसन 17, राइट? सो we meet very soon in the next lecture, right? Thank you so much.